महवश, यस। देखो मैंने तुम्हारे लिए ये सिंगर्स का बंदोबस्त किया है। तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हें गाना सीखने का बहुत शौक़ है, हाँ बहुत शौक है। तो देखो मैंने तुम्हारे लिए बुलाए हैं। चलें यार, आप इनको ना मेरी बेगम को कुछ सिखाएं ताकि ये भी अपना शौक़ पूरा कर सके। ठीक है, कोई अच्छा सा गाना सुनाएं। किस तरह का गाना सीखना चाहते हाँ हैं? महविश, बताओ इनको कैसा गाना आप सीखना चाहती हो। क्लासिक। क्लासिक। सोनिए जे तेरे कोलों पल्ला मैं चुड़ावा ते अल्लाह करे मैं मर जावा, ओ रब करे मैं मर जावा। झूठी जे तारीफ तेरी किसे नू सुनावा ते रब करे मैं मर जावा, ओ रब करे मैं मर जावा। वाह जी वाह, अच्छा। क्या बात है उस्ताद तरले खान साहब, बिल्कुल। बड़ा सोना गाते हो। अच्छे विचार हैं। ये जब मैंने ये गीत गाया ना, ये गाना, तो 4-5 तो वैसे ही मर गए। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਰਦੂ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। अच्छा जी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। जी सलेठी खान साहब पे बैठे ना। हाँ जी, ये मेरे शागिर्द हैं, ये मिन्नतुल्लाह खान साहब हैं, ये भी सिखाएंगे। ये भी सिखाएंगे आपको। ये आपके सारे सीनियर हैं, वो आपसे भी सीखेंगे। सलेठी खान साहब पुलिस। स्लेटी साहब भी सुनाएंगे आपको, आपने सीखना है हाँ जी सलेठी खान। जी। ਪਹਿਲੀ ਸਲੇਟੀ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। हाँ जी। ਚਲੋ ਸਲੇਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। नुसरत फतेह अली खान साहब का, नसीबो लाल का, मेहंदी हसन का, गुलाम अली खान साहब। राहत फतेह अली खान का कोई गा दे। राहत फतेह अली खान साहब। सलेठी देवी तेरा पूरा तारीफ करूंगा तेरी हर बात है जारी। सलेठी देवी तेरा पूरा। ये मेहंदी हसन ये मेहंदी हसन का उस्ताद साहब ने सुना दिया। ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ इनको ਗਾਣਾ सिखा के ਸੁਣਾਉਣਾ लाना ਹੈ। था यहाँ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਚਲੋ। ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਝੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨੂਆ ਜਾ ਢੋਲਣਾ ਨਾ ਨੂਆ ਜਾ ਢੋਲਣਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਪਾਇਆ ਅਜੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨੂਆ ਜਾ ਢੋਲਣਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਦਿਸ ਪਾਵੇ ਤੇ ਰੋਵਾਂ ਖੁੱਲ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋਲ ਆਵਾਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਅਜੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨੂਆ ਜਾ ਢੋਲਣਾ, ਉਹ ਢੋਲਣਾ ਨਾ ਨੂਆ ਜਾ ਢੋਲਣਾ। ਵਾਹ 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 ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੀਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫੱਜੇ ਦੇ ਪਾਏ ਮੰਗਾਏ ਨੇ। ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ, जी ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੱਜੇ ਦੇ ਪਾਏ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। जी ਚੱਲ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਲੈ मैंने ਕੇ एक ਆ। दो काम ने ते मैं वो करके आया। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਠੁਕਰਾਓ ਅਬ ਕੇ ਤਾਰੀਖ ਆਹ, मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ, गिरने दो तुम मुझे मेरा सागर सवार दो, वो गिरने दो तुम मुझे गिरने दो
ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਤਰਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮਿੰਤਰਲਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲੇਠੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਜੀ ਗਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੂੰ ਤੇ ਫੱਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹਾਏ 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 ਓਏ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਉਸਤਾਦ ਤਰਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਉਹ ਖਰਚਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚ 500 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪੈਸੇ, ਫੀਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹੁਣ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਬੇਗਮ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਹੋ, ਸੁਰਤਾਜ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। हाँ इसको ले जाओ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੀਏ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਓਏ ਬਾਤ ਫੜੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋਟੀ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੂੰ ਘੁੱਟਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੰਘਿਆ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਆ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸਤਾਦ ਤਰਲੇ ਖਾਂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਆਪ ਲੈ ਲਈ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਜ ਜ਼ਰਾ ਵਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੇਕਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਨੁਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਇਆ। महवेश, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उस बेंडे ने सब बता दिए। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। हाँ जाओ, मुझे देखो, आज मेरे पास सब कुछ है, मैंने स्टॉक एक्सचेंज खेला और आज मेरे पास गाड़ी भी है, घर भी है, पैसा भी है। जिस शख्स के लिए तुमने मुझे छोड़ा, आज उस शख्स की हालत देख लो। यार कोई गाना सुनाओ, अब मेरे पास पैसा आ गया, अमीर हो गया हूँ मैं। वाह जी। वैसे महवेश, तुम्हें मुझे आज इस हालत में देखकर कैसा लग रहा है? मैं वो पहले वाला दानिश नहीं हूँ जिसे तुमने ठुकरा दिया था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आज भी नहीं बदला। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया। ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਡੁੱਬਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। हैं? तो ये मुझसे झूठ बोल रहा था? नहीं महवेश, मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ये खबर तुम्हें किसने दी है? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਓਏ ਟੂ ਵੱਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਦੀ, ਮਦਦ ਕਰੋ ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਦੀ, ਮਦਦ ਕਰੋ ਕੁਝ ਫਕੀਰ। महवेश, तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी ना? ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? इनको ले जाओ। महवेश, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब आज मेरे पास पैसा नहीं रहा तो तुम मेरे साथ इस तरह से पेश आओगी? इनको ले जाओ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਨਾ ਸਕੀ ਜਾਨ ਵਾਲਿਆ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਟੁਰੇ ਗਈ ਗੱਡੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। परेशान क्यों ना हूँ? दानिश भी तलाश हो गया और दूसरा भी, मैं क्यों परेशान ना हूँ? ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 5-4 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭੇਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ 2 ਕਮਰੇ ਵੀ ਛੱਤੇ ਨੇ। ਗੋਲ ਤੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾਈ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇਰੀ। वेलकम बैक नाजरीन।
नहीं, वेलकम बैक तो ठीक है, लेकिन नाजरीन को हमने ये क्या दिखाया, ये क्या था सब कुछ, मुझे समझ नहीं आई। ये मेरे पास तुम हो का म्यूजिकल वर्जन है म्यूजिकल? जी। यार मुझे तो समझ नहीं आया कि कौन सा म्यूजिकल इसमें। और सर रिकॉर्डिंग को छोड़ें, मेरी एक्टिंग तो देखें। उसमें आपने क्या एक्टिंग की यार, मुझे बताओ। और डॉक्टर साहब उसमें उठकर जाना और एग्जिट होना ढोल की थाप पर, ये देखने वाली बातें नहीं। हाँ जी, वो आपने इसको सब बताया था। चलो यार, जिसने भी बताया हो, बहरहाल वो ऐसी बातें नहीं करते वो। ठीक है, हो गया तो उसमें और क्या, मुझे तो कोई ख़ास चीज़ इसमें नज़र नहीं आई। डॉक्टर साहब इसमें इन्होंने महविश का किरदार किया बड़ा अच्छा। हाँ, वो बहुत अच्छा था भाई रोबिया, मैंने देखा आपका वो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और 12 मिनट के क्लिप च इन्होंने मेरा ख्याल है कोई 10-12 गल्लां भी नहीं कीतियां। यार बात तादाद की नहीं होती, ना टाइम की होती, क्यों जी मंजूर साहब? हाँ जी, हाँ जी। बात होती है उसकी क्वालिटी की, मेयार की, किस जी। मेयार की बात काम किया उन्होंने। तो वसीम, आपने क्या उसमें किरदार किया? और मेरा करैक्टर उसमें आपको कैसा लगा दानिश के रूप में? वो कहते हैं ना कि शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे, गालिब का शेर है। तो ये जो बात हो रही है ना, किसने कैसा किरदार, मुझे वैसे नौकर जो था उसमें, उसके अलावा मुझे कोई सीरियस एफर्ट नज़र नहीं आई उसका। कॉमेडी स्किट के अंदर आप संजीदगी ढूंढ रहे हैं। भाई मंजूर साहब, इनको बताइए कि कॉमेडी करना एक बहुत सीरियस काम है, इसको मजाक नहीं है। ये तो ड्रामा ही है सर। इसको बहुत इजी ले लिया लोगों ने कॉमेडी को। ये ड्रामा बहुत पुराना हो चुका है। वो ड्रामा का तो है ना, मैं उसकी कॉमेडी की बात कर रहा हूँ कि जब आप उसकी पैरोडी बना रहे हैं तो उसमें कोई सीरियस एफर्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग कहें वाह जी वाह। ठीक है ना, पुरानी चीज़ें भी ज़ाहिर है लोगों को याद होती हैं। तो अच्छा चलें, ये तो ड्रामे की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मंजूर साहब से। मंजूर साहब, जो पीटीवी का एक सुनहरा दौर था जी, और आजकल भी कोई पंजाबी के ड्रामे होते हैं वहाँ पे? आजकल बहुत पीटीवी पे पंजाबी ड्रामे नहीं हो रहे, ना ही माजरत के साथ 1-2 चैनल्स हैं जो पंजाबी पे काम कर रहे हैं। बाकी तो दूसरे चैनल न्यूज़ के हैं तो एंटरटेनमेंट है, वो आप सब देखते हैं। कोई ड्रामा जो पीटीवी ने दिया, जो स्टेज आप जैसे शख्सियात के वालिदैन ने दिया, वो आजकल यहाँ नहीं है। वो ड्रामे में देखा जाए तो फुकदान आ गया, एक ग्लैमर सी नज़र आती है। अच्छा सीन कर देना, घर में बड़े बड़े सेट लगा के, अच्छा मेकअप करके, डायलॉग्स बोला नहीं जा रहा एक्टिंग से, और जो सिचुएशन क्रिएट की गई है राइटर्स ने और जो डायलॉग्स हैं उसके मुताबिक माजरत के साथ काफ़ी आर्टिस्ट उस पर पूरा नहीं उतरते। ज़्यादातर ड्रामे तो रोबिया, आप ये बहुत ड्रामे देखती हैं रोबिया जो है। मैं भी देखता हूँ, लेकिन इतना वक्त नहीं मिलता मुझे कि ड्रामों में अगर देखा जाए तो वो उनके शो केस हैं मेरे हिसाब से, ब्यूटी पार्लर वालों के। वाह वाह वाह, और जो यही बात ब्राइडल तैयार करते हैं, यही ग्लैमर लफ्ज़ भी यही इस्तेमाल किया। ब्राइडल वालों के कह लें, फर्नीचर वालों के, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वालों के, और इस तरह से जो ब्राइडल ड्रेसेस बनाते हैं उनसे रिलेटेड, और मतलब उनके बिजनेस वो स्पॉन्सर भी होते हैं इनके जी, और वो लाखों करोड़ों जो है ना इस पे खर्च रहे हैं वो लोग, और कुछ और भी कमर्शियल प्रोडक्ट्स दिखाते हैं वो लोग। तो ज़्यादा ड्रामा जो है वो उनका शो केस है, यानी ड्रामा मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ जी। और देखें, अच्छा फिर एक वक्त में जब ड्रामे शुरू होते हैं तो एक तरफ से एक सीरियल चल रहा होता है, उसमें भी तकरीबन वही कहानी चल रही होती है। ये पता नहीं क्या सिंक्रोनाइज होता है, इनको पता चल जाता है कि वो भी इस टॉपिक पे बना रहे हैं और वो भी उसी टॉपिक पे दूसरा भी चैनल शुरू हो जाता है। आजकल पुफियों का बड़ा चर्चा है, पुफी ड्रामा जो है ना। क्यों रोबिया, पुफी ड्रामा देखा आपने कोई? नहीं सर। ज़्यादा यही चल रहा, तलाक हो गई है। नहीं, पुफी ड्रामा जी, 2 पुफियाँ जो हैं इसमें छाई हुई हैं। एक ड्रामा तो अभी खत्म हुआ है पुफी वाला जो है ना, शेयर ड्रामा, जिसपे हमने उस सर दिन बात पुफी को बहुत जलील करके रख दिया इन्होंने। नहीं, उसमें आखिर में पुफी जो है ना बेचारी की शादी हो जाती है, फिर उसको थोड़ा सुकून आता है, तो वो फिर सारे मामलात को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन बड़ा सा नुकसान हो गया होता है। बहरहाल डॉक्टर साहब, मैं आपकी तवसत से यहाँ अर्ज़ करना अभी चाहता सर एक पुफी और सैयद नूर साहब है ना,
तो उन्होंने एक बयान दिया है कि जी वो जो साइमा नूर ने जी सारे एक्टरों को सुला दिया। वाह अब कोई कह रहा है जी उन्होंने कोई बेलियम खिलाई है उनको, कोई अफीम दे दी है। या उन्होंने अफीम दे नहीं, उनका दिया। मकसद यह था कि उनकी अदाकारी इतने हाई ऊंचे उनकी जो परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस है वो ऐसी ज़बरदस्त है कि बाकी एक्टर जो हैं वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। तो सुला देना, यानी उन्होंने एक यानी अदबी आदमी ज़ाहिर है, वो राइटर हैं, तो उन्होंने बात की उस हवाले से। लेकिन अगर देखा जाए तो वो भी पुफी का किरदार अदा कर रहे हैं, और एक ऐसी पुफी है जिसके 2 बेटे जो हैं वो जो उस गैंग वॉर में वो मर चुके हैं, जी। ठीक है जी, और उसका शायद हस्बैंड की भी डेथ हुई है इसी तरह से। और अब वो जो है वो एक अजीब से रोमांटिसिज्म और अजीब सी वो कश्मकश में, मुझे तो मेंटल लग रही थी। लेकिन ये है कि उसको तो 2 चीज़ें होती हैं, क्यों मंजूर साहब, जी जब सर। आपके साथ ऐसे हादसात हो जाएं तो या तो आपको उस गैंग वार से नफरत हो जाती है, उस सारे कल्चर से, उस सारी एटमॉस्फेयर से आप मुतनफ़र हो जाते हैं, और या फिर आप उसका पार्ट बन जाते हैं, या फिर आप ग्रीफ में चले जाते हैं जी कि आपको सदमा है। ज़ाहिर एक नौजवान औलाद जो है होती है उसका बिछड़ जाना, और वो भी इस गैंग वार की वजह से, तो आप उसका सदमा लेके एक तरह के डिप्रेशन में, एक तरह के उसमें चले जाते हैं। अब इस ड्रामे में जो किरदार उन्होंने लिखा है खलील साहब ने, और वो जो खातून है वो एक अजीब सा और रंग में वो अपनी जो भतीजी है उसको उसके रोमांस में, उसके रोमांटिसिज्म में, और उसके जो गैंग वॉर है उसके अंदर उनका जो किरदार है वो अजीब सा यानी मुझे लगा कि चलो शेर ड्रामे में जो पुफी थी जी उसकी कुछ समझ आ रही थी कि भाई पुफी जो है उसके चूँकि उसके अंदर जज्बात रह गए, जो उसकी काउंटर पार्ट थी दूसरी पुफी वो भाग के आ गई। हाँ जी 2 शादियां होनी थी ना, इनका वट्टा सट्टा पंजाबी के वट्टा सट्टा। होना सी, लेकिन वो नहीं होया। एक पासे दा हो गया और कुड़ी नस के आ गई इन्हां दे घर ते ओहदा ब्याह हो गया। ये नसी नहीं या उन्हें हिम्मत नहीं पई, या ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਚ आया कि मैं बड़ा बड़ा वो कारनामा। इसलिए नहीं नसी ਉਹਦੇ पैर ਤੇ सट लगी। अच्छा चलो, बड़ा अच्छी बात है, बारा भागना कोई अच्छी बात तो नहीं, जी। लेकिन ये है कि वो उसका राइट तो था ना ऑफ मैरिज, कि भी किसको पसंद करती है, किसके साथ वो शादी करती जी है। बिल्कुल फिर एक इंसान जो होता है उसके साथ ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाती। हाँ जी अगर वहाँ पे किसी वजह से शादी नहीं हो सकी कहीं और तो भी ये तो गैर इंसानी रवैया ना। बहरहाल उनकी पर्सनल चॉइस है। अब उसको उसने इंतकाम पे और सबको लगा दिया, ख़ानदान को, और ये तो वो एक पुफी का किरदार वो था। तो ये 2 ड्रामे साथ साथ पुफियों वाले शुरू हो गए। फिर अभी एक वो जो हरासमेंट पे ड्रामे शुरू हुए हैं। एक ज़रा एक्सट्रीम पे है वो तो बहुत ही फजूल ड्रामा है, जो फैसल कुरैशी और सबा कमर ने भी ऐसे ऐसे ड्रामे कर डाले हैं। हालांकि बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, अच्छी एक्टर, और कोई शक नहीं। उन्होंने इंडिया में फिल्म भी की, यहाँ भी बड़े अच्छे किरदार जी, उनके। जी। बागी उनका बड़ा अच्छा ड्रामा था। हाँ जी लेकिन अब वो मुनफरिद ड्रामा करने के चक्कर में एक उनका ड्रामा लगा था जी, शायद पीटीवी स्टाइल ड्रामा ही था वैसे, पागल खाना। वो बड़े अच्छे राइटर हैं इकबाल उनका साहब। एक कॉमेडी ड्रामा था SHE, वो भी बड़ा चला था। जी जी, तो वो पुलिस वाली बनी हुई जी है। जी हाँ बिल्कुल। जी नहीं, ये जो ड्रामा था ना, शायद आपने देखा है रोबिया, ये ड्रामा उनका पागल खाना सीरियल आया था, वो शायद ग्रीन टीवी से या किसी, ग्रीन टीवी से ठीक है था। ना। सर अच्छा, ऐसे स्ट्रेस वाले ड्रामे तो नहीं देखे। नहीं वो लिखा भी बड़े अच्छे राइटर हैं, इकबाल साहब हैं, और इकबाल वो बड़ा अच्छा लिखते हैं, वो पीटीवी के बड़े अच्छे सीरियल्स उन्होंने लिखे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि वो ड्रामा डायरेक्टर से बना नहीं या क्या हुआ, वो बिल्कुल, या ऑडियंस जो उसका टेस्ट चेंज हो गया हुआ है। उसमें सबा कमर भी, उसमें बहुत से एक्टर्स थे और उनकी अलग अलग स्टोरीज थी। एक मतलब ऐसा वो दिखाया हुआ मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर कह लें, तो वहाँ पे ये सारा वो मरीज़ हैं, मुख्तलिफ उनकी स्टोरीज चलती हैं, लेकिन पागल somehow खाना। वो बात नहीं बन सकी। फिर एक इनका ड्रामा अभी फैसल कुरैशी के साथ आ रहा है, और वो जो है वो फिर एक इनका और ड्रामा शुरू हुआ पामाल। और पामाल में जिस तरह की लड़की का वो रोल कर रही हैं, जी वो उस एज से
मेरा ख्याल है कि जब वो आधी इससे उम्र की थी वो गुजर चुकी हैं, क्योंकि एक यंग लड़की है जो लिखती है, राइटर है बेसिकली। ये अच्छी बात है कि चलो एक सब्जेक्ट चेंज हुआ है कि राइटर के ऊपर भी आया है कि वो लड़की है, राइटर है और लिखती है, कहानियाँ लिखती है। और उस्मान मुख्तार साहब जो हैं वो भी मेरे जानने वाले हैं एक हवाले से, तो वो भी बड़े अच्छे एक्टर हैं, इस्लामाबाद पिंडी में रहते हैं वो, और वहीं से वो ड्रामा हो रहा है मरी और इस्लामाबाद। वहाँ पे ये पामाल ड्रामा जो है उसमें वो मिसफिट हैं बुरी तरह से, और जिस ड्रामे में फिट लगी हैं, यानी वो एक डावोर्सी का कैरेक्टर उसमें कर रही हैं फैसल कुरैशी के साथ, वो टेक्निकली बहुत गलत है वो ड्रामा। यानी उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं कि वो बनता ही नहीं, उसकी बीवी जो है वो 2 मिनट में पकड़ सकती है उसको। अच्छा, एक और उसमें मंजूर साहब देखें कि जो विक्टिम है जिसके साथ ये ज्यादती हुई है, और जो उसमें मेन विटनेस है फैसल कुरैशी, उसमें जो है ना वो अक्यूज्ड है, और उसका मेन विटनेस है उसका दोस्त।